کہ خدا نے اس کلام کو ہماری زندگیوں کے لیے رکھا ہے. آمین. آج کا ٹاپک، خدا نے ابراہیم سے وعدہ کرتے وقت قسم کھائی، اور اس عنوان کو لے کر کہ خدا نے اس قسم کو کیوں کھایا. خدا کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ خدا قسم کھائے؟ نہ کہ وہ انسان کے لیے، نہ کہ کسی اور چیز کے لیے اپنی گواہی کو پیش کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ خدا ہے. لیکن قسم کیوں کھائی، اس کے متعلق، اس کے بارے میں آج ہم خدا سے سیکھیں گے اور جانیں گے کہ خدا کو اس بات کی کیوں حاجت ہوئی، کیوں ضرورت پڑ گئی کہ خدا ابراہیم کے ساتھ قسم کا وعدہ پورا کرے. آمین. خدا ان کے کلام مقدس میں سے آج کی ہم مرکزی آیت کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. عبرانیوں کا خط اور اس کا 6 باب اور اس کی 13 آیت مقدسہ. عبرانیوں پالوس رسول کا خط، خدا کے بندہ پالوس نے اس میں بہت گہرے بھید خدا کے کلام میں سے بیان کیے ہیں. جی 13 آیت کو عمران صاحب پڑھ دیں. خدا ان کے زندہ اور مقدس کلام سے، چنانچہ جب خدا نے ابراہیم سے وعدہ کرتے وقت قسم کھانے کے واسطے کسی کو اپنے سے بڑا نہ پایا، تو اپنی ہی قسم کھا کر فرمایا کہ یقیناً میں تجھے برکتوں پر برکتیں بخشوں گا اور تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا. آمین. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. یہاں پر ہم نے اس بات کو جب دیکھا ہے تو عبرانیوں کہتا ہے کہ چنانچہ جب خدا نے ابراہیم سے وعدہ کرتے وقت قسم کھانے کے واسطے کسی کو اپنے سے بڑا نہ پایا، تو اپنی ہی قسم کھا کر فرمایا کہ یقیناً میں تجھے برکتوں پر برکتیں بخشوں گا اور تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا. یہ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا. لیکن آج ہم اس بات کو پہلے جانیں گے کہ خدا نے اپنی ہی قسم کیوں کھائی. تو کلام اس بات کی تصدیق دے رہا ہے کہ خدا نے اپنے سے بڑا کسی کو نہ پایا. خدا سے بڑا اس دنیا میں کوئی نہ آسمان پر، نہ زمین پر، نہ زمین کے نیچے. اور خدا نے اس بات کو پالوس رسول کو سکھایا. پہلے پالوس رسول نے اپنے اندر اس بات کو سیکھا، اس کو سمجھا، اس کو پرکھا. اس میں سے اس نے بائبل میں سے، اس تمار میں سے، اس شریعت میں سے اس باتوں کو آئیڈینٹیفائی کیا، اور پھر آ کر اس بیان کو اس نے قلم بند کیا. یہ بائبل ایسے نہیں ہے کہ بس ایویں لفظ دے جا رہے ہیں تے لکھتے جا رہے ہیں. ہم جب خدا کے خادم اس کلام کو بیان کرنے کے لیے ہمیں پتا ہے، چاہے اسی ٹرکتے ہوئیے، چاہے اسی بستے ہوئیے، چاہے اسی گھر ہوئیے، جب کلام سنانا ہوتا ہے تو ہر وقت ستا کلام کی طرف لگی ہوتی ہے. اس شخص کی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ان باتوں کو ٹھیک ٹھیک آئیڈینٹیفائی کر کے پھر اس کلام کو دوسروں تک پہنچائے. تو جو خود نہیں نہ سیکھے ہوئے تو وہ کسی کو بھی سکھا نہیں سکتے. آج یہ کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ خدا نے کسی کو بڑا نہ پایا اپنے سے. آج ہر بندہ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، ہر بات میں ایک دوسرے کو پیچھے ہٹانے کے لیے کبھی وہ کسی کو بڑا بنا دیتے ہیں خدا سے، کبھی خدا سے کسی کو بڑا کر دیتے ہیں. ان کے اندر اصل میں
तस्लीस फिल तौहीद की असल तालीम मौजूद नहीं है। तस्लीस की मुखालफत करते हैं, डिनोमिनेशंस तस्लीस की मुखालफत करते हैं। बाइबल में लफ्ज तस्लीस नहीं है, लेकिन बाइबल तस्लीस के बगैर अनकंप्लीट है, क्योंकि हम खुदा को खुदा बाप जानते हैं, बाइबल से जानते हैं। हम खुदा बेटे को बेटा बाइबल से जानते हैं। हम रूह कुदुस को खुदा रूह बाइबल से जानते हैं। तो जब हम बाइबल के स्टेटस में आके उन बातों को ठीक ठीक जगह पर, ठीक ठीक इम्तियाज में, ठीक ठीक तालीम के मुताबिक, ठीक ठीक रुतबे के मुताबिक उन्हें पेश नहीं करते, तो इसका मतलब कि हमने अभी तक कुछ भी सीखा तो बाइबल में सिर्फ असी खोलिया ते बंद किया, इसके अलावा हमने उसमें से कुछ भी हासिल। औरत का सर बोले हैं, सबको पता है, औरतें भी बोले, हाँ? औरत का सर मर्द ठहराया है। तो ये किसने ठहराया? मैंने। ये बाइबल प्रूफ कर रही है इसको। तो मर्द का सर यीशु मसीह। एज इट इज बाइबल में करंथिस की कलीसिया को जब पैगाम दिया पौलुस रसूल ने, तो इस तरतीब को बयान किया। और बयान करने का मकसद क्या है कि इसी तरतीब से इन बातों को अपनी जिंदगी में एक्टिवेट रखना है। एक स्कूल में 3 टीचर हैं, ठीक है, एक क्लासरूम में 3 टीचर हैं, और तीनों अपने अपने सब्जेक्ट का होमवर्क देते हैं, ठीक है। आप मैथ को इंग्लिश के साथ अटैच कर सकते हैं? नो। आप इंग्लिश को मैथमेटिक्स के साथ या ज्योग्राफिया के साथ या साइंस के साथ अटैच कर सकते हैं? इंग्लिश के सब्जेक्ट में जो टीचर ने आपको दिखाया है, बताया है, सिखाया है, आपने वही बातों को सीखकर याद करके चलना। और मैथ वाला जब टीचर आएगा है, तो आपने उसके सामने और कोई किताब तो नहीं खोलनी, साइंस की खोल ले। वो बोले कभी हाँ भी 2+2, तो आप कहें जी के मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो दूसरा सबक सीख के आया। तो वो आपकी जिंदगी में ऑब्जेक्शन है, ओवर रूल्स नहीं है। आपने उन्हें ठीक ठीक फॉलो नहीं किया, ना अपने टीचरों को फॉलो किया, ना आपने उन बुक्स को फॉलो किया जो आपको पढ़ाई गई। आज इसी तरह से खुदा का कलाम बिगड़ता जा रहा है? जितने उसके मोतबर उस्ताद बनते जा रहे हैं, उतना ही वो कलाम बिगड़ता जा रहा है। यहां पर मैंने थोड़ी सी तफसील में बात लिखी है कि बाइबल मुकद्दस में तस्लीस का लफ्ज नहीं है, लेकिन तस्लीस के बगैर बाइबल के ईमान पर चलना नामुमकिन है। तस्लीस फुल तौहीद में एक खुदा है, और ये बहुत से लोगों को, हर मजहब जो जमीन पर है, हर मजहब जो जमीन पर है, वो एक खुदा को मानता है। एक खुदा को मानता है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो बुद्ध मजहब है, चाहे वो कोई भी है, वो एक खुदा को मानते हैं। लेकिन क्रिश्चियनिटी में एक खुदा के ऊपर पूरा ईमान कंप्लीट नहीं होता। खुदा एक है, लेकिन उसमें से 3 शख्सियतें हमें खुदा ने अपने कलाम में दिखाई हैं। पहली यीशु मसीह जो खुद कलमाए खुदा है, वो कलामे खुदा, वो खुदा में से निकला और आया है।
इसका मतलब कि वो और किसी शख्सियत में पहले रहता था, उसकी आइडेंटिफाई और है, उसका रुतबा और है, उसका और मर्तबा है जिसमें यीशु मसीह रहता था, और वो था खुदा है? वो तो यीशु मसीह ने कहा ना कि मैं खुदा में से निकला और आया हूं। तो इसलिए बताना चाहते हैं कि ताकि आप ठीक ठीक खुदा बाप को, खुदा बेटे को और खुदा रूह कुदुस को अपनी जिंदगी में लेकर चले। तो एक खुदा की नहीं मान रहे हैं, जेड़े कहते ने ना, नारे मारते ने वाहिद खुदा, वाहिद अल्लाह, वाहिद पर हम ईमान रखते हैं, वो उन्हीं के सही फॉलोवर नहीं है, उन्हीं की तालीम को सही अपने अंदर लेके फॉलो नहीं कर रहे नो। तो हमारे पास तो 3 खुदा हैं, है जी 3 खुदा, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा। लोकां कोलों एक दी पूरी तालीम नहीं कवर होण दी अपने अंदर, साडे लिए ते 3 है। हमारे 3 खुदा हैं, हम ईमान रखते हैं इस बात पर, हम 3 खुदाओं को मानते हैं, लेकिन खुदा बाप, खुदा बेटा, बेटा खुदा बाप नहीं है और खुदा बाप बेटा नहीं है, और रूह कुदुस यीशु मसीह नहीं है और यीशु मसीह रूह कुदुस नहीं है। ये तालीम में हम में एक पूरा पूरा एतमाद, एतकाद और इस बाइबल की तालीम को हमने अपनी जिंदगी में लेकर चलना है, क्योंकि खुदा बाप वो है अव्वल, वो है अव्वल, जिसका ना कोई शुरू है और ना कोई आखिर है। ये 3 बातें हैं जिनमें मैं एक बात को सिर्फ ऐड करूंगा कि यूनानी तौर पर आर्खे, इस यूनानी लफ्ज को लोगोस में अल्फा कहा गया है, और अल्फा को अगर हम ग्रीक में तो अजल से लफ्ज है, अजल से, जबकि अजल का लफ्ज की पावर इब्रानी आर्खे में वो है कि जिसका कोई शुरू, जिसका कोई मुकाम पहले से दर्ज ना हो, और उस बात को सिखाया जा रहा है बाइबल में कि इस आर्खे का मतलब है अजल से, और अजल से एक ही है, और जिबा किया हुआ बर्रा इज्जत, हशमत और बुजुर्गी के लायक है, लेकिन खुदा में था। ये वो वाला बर्रा खुदा से बाहर नहीं पेश किया जा रहा, क्योंकि जब तक यीशु मसीह जमीन पर नहीं आया वो किस में था? यस, ये है असल बात। लोग इधर की बात उठा के उधर अटैच करके वो कहते लो यीशु मसीह के लिए लिखा गया है कि वो अजल से जिबा किया हुआ बर्रा है। भाई वो बात मकाशवा में इसलिए दर्ज की गई थी कि खुदा जो अजल से मौजूद है उसमें उसका बेटा था, और बेटा उसका कलमा है, और वो कलमा अजल से उसमें मौजूद है। फिर उस कलमे का वजूद बना, और वजूद के लिए हम जब देखते हैं तो इसके लिए दूसरी शरह आ जाती है कि इब्तदा है, अल्फा ओमेगा, इब्तदा और इंतहा। मकाशफा 21 बाब में इसको दर्ज किया गया है, और उस मकाशफा की बात को इब्तदा और इंतहा इसलिए कहा गया है कि यीशु मसीह अल्फा भी है, ओमेगा भी है, इब्तदा भी है, इंतहा भी है। इब्तदा का मतलब जिसका कोई शुरू हो, जिसको जहां से शुरू किया जाए। आर्खे का आगाज जो अल्फा से है वो अल्फा है अजल से, और अजल से जो है उसका कोई शुरू नहीं है, लेकिन इब्तदा का शुरू है। और इब्तदा
हम किसी भी चीज की कर सकते हैं, किसी भी चीज की हम फाउंडेशन रख सकते हैं, नींव रख सकते हैं। यीशु मसीह को भी जब खुदा ने कलमाए खुदा कहकर पुकारा है, तो वो कलमा इब्राहिम की नस्ल में से दाऊद की असल और नस्ल कहलवाया, और उसमें से मरियम के बतन में वो कलमा मुजस्सम हुआ। किसके वसीला से? खुदा के रूह के वसीला से, पाक रूह कुदुस के वसीला से। और पाक रूह कुदुस का वजूद यीशु मसीह से भी पहले का मौजूद है, क्योंकि रूह कुदुस एक वाहिद ऐसी हस्ती है जो से पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी जब कुछ भी नहीं था। लिखा है बाइबल में, तब कुछ भी नहीं था। आसमान की चीजें ना जमीन पर ना कोई जमीन के नीचे, तब भी खुदा की रूह पानियों पर जुम्बश करती थी। ये वो रूह है, और खुदा ने इस रूह के वसीला से यीशु मसीह को पैदा किया। मतलब कि यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह की इब्तिदा हुई, और फिर उसके बाद यीशु मसीह इस दुनिया में आए, और खुदा के उस रुतबे को उसने दुख उठा कर फर्मा बरदारी पूरी की और फर्मा बरदार बना, और उसने जान देने तक अपने आप को फर्मा बरदार रखा। तब ही खुदा ने उसको सब नामों से बढ़कर नाम बख्शा, अपना जलाल बख्शा, अपनी इज्जत बख्श दी कि ये वाकई ही में वो मेरा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। हालेलुया। ये कुर्बानियां ऐसे ही हो जाती हैं। ये खुदा के मंसूबे हैं, और खुदा अपने मंसूबे में, तीसरी बात, जिसका शुरू होता है, जो शुरू से है, ये इसम है। शुरू एक इसम है जिसके मतलब को हम जानने के लिए देखते हैं कि पहले से कुछ मौजूद होना। पहले से कुछ मौजूद होना मतलब कि हम पूरी दुनिया को, कायनात को, आसमान को, जमीन को देखते हैं तो हमें कुछ भी नजर नहीं आता कि जब कुछ भी नहीं था तब कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी किसी से शुरू हुआ था, किसी ने शुरू किया था। आसमान बन जा, जमीन बन जा है, और जमीन के नीचे के पानी की अंदर की चीजों को बनाना शुरू किया, किसी ने शुरू किया था। और वो शुरू जो सा है वो है खुदा का रूह। ये है तस्लीस के भेद जिसमें से बाइबल हमें बयान करती है। कोई तो सिर्फ खुदा को ही यहोवा खुदा मानकर यीशु मसीह भी उसी को और खुदा का रूह भी उसी को और तस्लीस को वो ऐसे करके मिटा देते हैं कि जी कोई तस्लीस नहीं। वो अपने इल्म के मुताबिक ठीक है, क्योंकि उन्होंने खुदा को वहां तक जाना है, बाइबल को वहां तक सीखा है, बाइबल में से वहां तक पहुंचे हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो से यीशु मसीह को ही खुदा बाप और यीशु मसीह भी और पाक रूह कुदुस भी मिक्स कर देते हैं, और वो ओनली यीशु को सब कुछ मानते हैं। वो अपने इल्म के मुताबिक ठीक है, क्योंकि उन्होंने वहां तक सीखा है, उनकी अकल ने वहां तक उन्हें सिखाया है, ये बाइबल ने वहां तक उन्हें बताया है जहां तक उन्होंने उस बात को सीखा है। इसलिए जहां पर जो अपने आप को उस बात के लिए सिखाना नहीं चाहता, सीखना नहीं चाहता, आगे बढ़ना नहीं चाहता, कलाम को अपनी समझ के मुताबिक ही रखना चाहता है, वो शख्स इस कलाम से अपने इल्म के मुताबिक, अपनी अकल के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक ही खुदा से वो उस बरकत को हासिल करेगा। हम किसी पर ऑब्जेक्शन नहीं करते। हम देखते हैं
कि खुदा का कलाम हमें कहां कहां पर सबूत देता है, प्रूफ देता है इन बातों के। और खुदा ने जब इसकी इब्तिदा शुरू की, बरकत की, तो इब्राहिम का एक वाक्य सिर्फ हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस में से। इस बात को हम देखेंगे इब्रानियों में से, इब्रानियों 7 बाब की 11 आयत को हम देखेंगे। बस अगर बनी लावी की कहानत से कामलियत हासिल होती, हाँ जी, पूरा पैरा बोलो। क्योंकि उसी की मातहती में उम्मत को शरीयत मिली थी जी, तो फिर क्या हाजत थी कि दूसरा काहिन के तौर का पैदा हो यस और हारून के तरीके का ना गिना जाए। यस और जब कहानत बदल गई तो शरीयत का भी बदलना जरूर है, यस, क्योंकि जिसकी बाबत ये बातें कही जाती हैं वो दूसरे कबीले में शामिल है जिसमें से किसी ने कुर्बानगाह की खिदमत नहीं की। चुनाचे जाहिर है कि हमारा खुदावंद यहूदा में से पैदा हुआ और इस फिरके के हक में मूसा ने कहानत का कुछ जिक्र नहीं किया। कहानत का कोई जिक्र नहीं किया। ये यीशु मसीह उस कबीले में से पैदा नहीं हुए जिस कबीले को खुदा ने कहानत की जिम्मेदारी, खिदमत दी थी, क्योंकि यहूदा के कबीला में से कहानत नहीं थी। लेकिन यहूदा के कबीला में से खुदावंद यीशु मसीह को खुदा ने पैदा करके उसको सरदार काहिन, जिस बात के लिए हम खुदा के कलाम को सीख रहे हैं कि यीशु मसीह को खुदा ने अपने से उस रुतबे पर रखा है कि जिस रुतबे पर वो बेटा कहलवाए, इस दुनिया का इंसान कहलवाए। खुदा इंसान उसको पेश करना चाहता है, क्योंकि इंसान होकर उसने उस कहानत को लिया और उस कहानत में उसने उस बात को अपनी कुर्बानी के साथ पेश किया। ये जो से लावी होते थे, ये कौन सी कहानत करते थे? ये हैकल में लोगों से देयकी भी लेते थे, लोगों की नजरें कुर्बानियां लेकर वो खुदा के मज़बा पर रखते थे और लोग उन कहानत को मानते थे कि ये लावी के घराने से हैं और इनको ये हक बख्शा गया है। और शरीयत के मुताबिक वो कहानत जो सी वो कर रहे थे, वो लोगों के लिए थी, उनके गुनाहों को मुआफ करने के लिए, लेकिन उससे पहले उन्हें खुद भी पाक होना। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ऐसा सरदार काहिन आया जिसको खुद पाक होने की जरूरत नहीं। वो लोगों के, दुनिया के गुनाहों की खातिर सलीब पर कुर्बान हुआ और वो कुर्बानी उसकी हमारी जिंदगियों के लिए परफेक्ट ठहरी। इस बात को फाइनली अगली मर्तबा हम पूरा सीखेंगे। अभी तक जो बातें हमने सीखी हैं वो खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदुस के बारे में सीखी है कि खुदा बाप और खुदा बेटा और खुदा रूह कुदुस सब एक खुदा की हैसियत नहीं रखते। ये हैसियत तब बनेगी जब खुदा चाहेगा, जब यीशु मसीह खुदा में वापस जिस तरह से निकला है उसी तरह से वापस जाएगा, जब रूह कुदुस जिस तरह से दुनिया पे आया है दुनिया से वापस जाएगा। और फिर जब तक ये दुनिया पर इनकी बाइबल के मुताबिक तालीम
सिखाई जाती है, उसी तरह से इनके रुतबे को भी हमने अपने लिए इस्तेमाल करना है, अपने लफ्जों में, अपनी दुआओं में। ये नहीं है कि हम सारी दुआ यीशु तो मांगते रहिए तो बाद एंड ते आके असी कहिए बाप के नाम से हम आमीन करते हैं। दुआ खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाई है कि मेरे बाप से मांगो। किससे मांगो? बाप से। मैंने बड़ों की दुआएं सुनी। आप ईमानदार हैं, आपकी दुआ स्टेट में होनी चाहिए, कलाम की बातों के मुताबिक, कलाम के अल्फाजों के मुताबिक। कलाम की बातों से आप एक दूसरे को बरकत दें। अपने अल्फाज कम इस्तेमाल करें, कलाम के अल्फाज दुआ में ज्यादा इस्तेमाल करें। उतना से ही हम मांगते हैं, उतनी सी हम बरकत चाहते हैं, हम उससे आगे नहीं बढ़ते। तो उसकी बेसिक वजह क्या है? बाइबल स्टडी का ना होना। जिन जिंदगियों में बाइबल स्टडी होती है, उन जिंदगियों में अल्फाज होते हैं, बाइबल के अल्फाज होते हैं। नहीं मालूम, ज़बूर पढ़ा करें। नहीं मालूम, खुदा के कलाम की अंजीलों में से लफ्ज ऐसे जो से आपको बरकत दे और खुदा आपकी दुआओं को सुने। आमीन। वो हमारे अल्फाजों से ज्यादा खुदा अपने कलाम को इज्जत और अजमत देता है। वो अपने कलाम की बातों को ज्यादा सुनना पसंद करता है। God bless you.